Good morning, students. Class 7 Science. In science, we have discussed about the chapter 12. It is reproduction in plants. Reproduction, first of all, we should know about what is that. Reproduction is a process of production of new individuals from their parents is called reproduction. Generally, reproduction is found in two types. The first one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. After that, we was discuss about the differences between asexual reproduction and sexual reproduction, in which asexual reproduction we have first of all discussed about the fragmentation. Fragmentation is commonly found in aquatic plant that is called as a spirogyra and in algae. After that, we was discuss budding process. It is found in yeast. Small bulb-like structures are formed in the body, and after detach, it will form a new yeast cell. After that, we have discussed about the spore formation. Spore formation found in mold. We have commonly seen in the bread pieces when it is left out for 4 to 5 days. We have seen a small thread-like structures are found on the surface of the bread, and black powder-like substances are spreading over the bread. It is the spore that have been formed by the mold, in which we can see the figure of a mold on a broad vein. Here the root-like structure is called rhizoids. The stem-like structure is called stolon. After that, the sporangium and sporangiophore. All these are the part of a bread mold, and the flower-like structures are formed the spore-like tiny substances. It is powdery in appearance. In mushroom, it is also do the spore formation, and in fern, it is also do the spore formation. After that, today we will discuss the topic vegetative propagation or reproduction. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative part of the parent plant. Vegetative part including root, stem, leaf and bud. किसी भी पौधे में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो वेजिटेटिव पार्ट वो भाग है पौधे का जो कि पौधे के विकास में सहयोग करता है, जैसे कि उसकी जड़ें, उसका तना, उसकी पत्तियाँ और उसके बड्स. ठीक है, ये उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसका फ्लावर होता है. फ्लावर में एंड्रोशियम, गायनोसियम, कैलिक्स, करोला, ये सारे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं. वो इसमें भाग नहीं लेते. यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है या प्रोपेगेशन हो रहा है वो सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है. ठीक है, उसके शरीर के अंगों से हो रहा है. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डू नॉट पार्टिसिपेट. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, चाहे वो एंड्रोशियम हो, गायनोशियम हो, ये सारे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका कोई रोल नहीं होता. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी डन बाय नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्राकृतिक रूप से भी होता है कुछ पौधों में, और कुछ को हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं या हम करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब हम सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के एग्जांपल्स को देखेंगे, किसमें किसमें ये होता है. मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस नेचुरली विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव. बहुत सारे पौधों में जो एक पौधे से दूसरा पौधा उनके तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा बन जाता है या उससे पैदा हो जाता है. देखते हैं किस तरह से. लेट्स सी. नेचुरल vegetative propagations occurs when a axial bud grow into the lateral shoot and develop into the own root, also known as the adventitious root. Plant structures allowing natural vegetative propagation including bulb, rhizomes, stolon and tuber. So
in natural vegetative propagations, the plant structures allowing natural vegetative propagation including bulb, rhizomes, stolon and tubers. The first one is bituber. Bituber commonly we have seen in the potato. In potato we are seeing a small white color eyes are appeared on the upper surface of the potato. हमने आलू के जो आलू का जो सब्जी है उसके ऊपर देखा होगा, जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर के ऊपर स्मॉल आइज़ डेवलप हो जाती हैं और उस आइज़ से फिर पत्तियां विकसित हो जाती हैं. तो यहाँ पे एक पौधे का जो निर्माण हो रहा है वो एक ट्यूबर से हो रहा है. ठीक है, उसमें आइस फॉर्मेशन होना और आइस से पूरे प्लांट का डेवलप होना, इस तरह के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसको हम ट्यूबर फॉर्मेशन से कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन and it is found in potato. The second one is bulb. By bulb the vegetative propagations happened in onion, daffodil, lily and tulip. New plants are also produced from bulb. इसमें एक पौधे से दूसरा पौधा उसके बल्ब के द्वारा विकसित हो जाता है. बल्ब आर द अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक लीव. बल्ब किसे कहते हैं? बल्ब जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. ठीक है, पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाला तना है जो बहुत ही थिक होता है, मोटी पत्तियों के साथ होता है. ठीक है. थर्ड वन इज़ बाय राइजोम. राइजोम्स आर रूट लाइक स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड. राइजोम्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है? हमने जिंजर और आयरिस, हमने अदरक का पौधा देखा है. अदरक के पौधे में जो राइजोम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ये होता है, जड़ों की तरह से दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है. लेटरल बड्स ग्रो आउट टू फॉर्म अ न्यू राइजोम. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बड जो है ढेर सारी बड्स इसमें से निकल जाती हैं और हर बड में से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ राइजोम्स. तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में सबसे पहले देखा ट्यूबर फॉर्मेशन, जैसा कि आलू के केस में होता है. बल्ब फॉर्मेशन प्याज के केस में होता है. राइजोम फॉर्मेशन अदरक के केस में होता है. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज़ बाय कॉर्म. इन ग्लैडियोलस एंड कोलोकेसिया स्टेम आर शॉर्ट एंड स्टोर फूड. Such stem is called corm and can develop into the new plant separately. ग्लैडियोलस का जो पौधा होता है उसमें जो तना होता है वो बहुत छोटा होता है और उसमें स्टोर्ड फूड, ढेर सारा फूड वो स्टोर करके रखता है और जिसकी वजह से जो पौधा है वो पौधा उससे विकसित होता है. ठीक है, जिसे हम कॉर्म कहते हैं. बाय रनर और स्टोलन. Stolons or runners are horizontal stem that grow above the ground. For example, strawberries and grasses. हमने कॉमनली देखा होगा, ज़्यादा मुख्यतः देखा होगा, जो घास होती है, दूब घास जो होती है, दूब घास में हम देखेंगे एक मोटा सा तना होता है जो पृथ्वी के ऊपर फैला रहता है और उससे छोटी छोटी जड़ें जो होती है, राइजोम्स होते हैं, वो पृथ्वी में अटैच रहते हैं और उससे लीफ डेवलप होती हैं और वो एक तरह से जो प्लांट है वो पूरे फील्ड में फैल जाता है. तो हम उस तरह की चीज़ों को कहते हैं रनर कहते हैं. तो वो तेज़ी से चारों तरफ फैल जाता है, उसकी स्टेम जो है वो डेवलप होती चली जाती हैं और एक स्टेम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करके वो पूरा नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेता है और पूरे फील्ड में वो फैल जाता है. ठीक है. और इसमें ऐसा होता है कि अगर हम बीच में रनर को काट देते हैं, जैसे एक तने को अगर हमने काट भी दिया तो दोनों जो प्लांट हैं वो सेपरेटली अलग अलग ग्रो कर जाएंगे, लेकिन वो सूखता नहीं है. ठीक है, स्टोलन को काटने से प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता. ठीक है, इट विल ग्रो सेपरेटली. बाय लीव. पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगा? इन ब्रायोफिलम न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम लीव. ब्रायोफिलम में क्या होता है? एक तरह की कैटेगरी है पौधे की जिसमें पत्तियों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है. द लीफ ऑफ दिस प्लांट हैज़ मैनी बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन. हमने अजूबा का पौधा देखा होगा. अजूबा के पौधे में पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के किनारों पे
छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं और इस प्लांट से नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में बाई ट्यूबर फॉर्मेशन देखा, बाई बल्ब फॉर्मेशन देखा, बाई राइजोम्स देखा, राइजोम्स के बाद हमने देखा बाई क्रोम्स और बाई रनर। ठीक है, इसमें अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखे, पोटैटो के लिए, ओनियन के लिए, जिंजर के लिए, ग्लैडियोलस के लिए और ग्रासेस के लिए। फाइनली हमने बाई लीफ देखा, बाई लीफ में कैसे हुआ, ब्रायोफिलम के केस में। बाई रूट, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर ग्रो बाई कटिंग इट्स swollen roots into parts and planting them into soil। स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटो को हम जितने भाग में काट करके और दोबारा मिट्टी में लगाते हैं तो उससे नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, ये एक रूट का पार्ट है। वैसे ही ये बाई शूट इन मनी प्लांट, मनी प्लांट अक्सर हमने अपने घरों में देखा होगा। मनी प्लांट के तने को तोड़ करके अगर हम दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो फिर से नए पौधे में विकसित हो जाता है। न्यू प्लांट्स कैन डेवलप फ्रॉम द शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के अंतर्गत आती हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। दिस इज़ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से होंगे जो हमारे द्वारा विकसित किए जाते हैं? द फर्स्ट वन इज़ कटिंग। कटिंग मेथड इज़ फर्स्ट मेथड in artificial method of vegetative propagations, in this method a part of stem having leaf bud is cut off from the main plant and planted into the soil. After some time the root and leaves grow from the stem cutting. This method is used to propagate plant like rose, bougainvillea, cactus and sugarcane. हमने कटिंग मेथड के द्वारा जो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जैसे हमने गुलाब के केस में देखा होगा, गुलाब के तने को काट करके अगर ज़मीन में लगा दिया जाए तो तने से फिर रूट्स डेवलप हो जाते हैं और वो जो पौधा है वो इंडिविजुअल नए पौधे को विकसित कर देता है। बोगनवेलिया के केस में भी सेम चीज़ होती है, अगर हम उसके तने को काट करके मिट्टी में लगा देते हैं। कैक्टस के केस में ऐसा ही होता है, नागफनी के पौधे को अगर हम तोड़ करके दूसरी जगह लगा दें तो वो नया पौधा विकसित कर लेता है। और शुगर केन, गन्ने के केस में भी ऐसा ही होता है कि गन्ने को हम काट काट के छोटे छोटे पीसेस को मिट्टी में लगा देते हैं और वो एक नए गन्ने के पेड़ में विकसित हो जाता है। तो इस तरह के मेथड को हम कटिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज़ लेयरिंग। इन दिस मेथड अ मैच्योर ब्रांच ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज बेंट टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। इस तरह के मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के मैच्योर स्टेम को हम क्या करते हैं, बेंड करके उसको ज़मीन में नीचे जमा कर देते हैं, धंसा देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। तो जब उसके ऊपर हम मिट्टी ढक देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं और ये एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। द टिप ऑफ द ब्रांच शुड रिमेन एबव द सॉयल। इसमें जो इसकी टिप होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। आफ्टर सम टाइम रूट डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। कुछ समय के बाद जिस तने को हमने नीचे मिट्टी के दबा दिया था उसमें उसके अंदर से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं जो कि नए पौधे को जन्म देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड लेयर। इसको लेयर कहा जाता है। नाउ द ब्रांच कैन कट ऑफ। जब इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं तो हम इस तने को काट करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। और इस तरह का जो मेथड है वो जैस्मिन और रोज़ के केस में किया जाता है। ठीक है, जैस्मिन के पौधे में और रोज़ के केस में हम लेयरिंग मेथड से नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफ्टिंग। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू डेवलप अ न्यू प्लांट विथ डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट। इस तरह का जो मेथड है वो दो अलग अलग तरह के पौधों को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ऐसा हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग रोज़ के केस में हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई रेड कलर का रोज़ है और एक दूसरा रोज़ है जो येलो कलर का है। अगर दोनों के स्टेम को हम ग्राफ्ट कर दें, ठीक है, हम येलो कलर के स्टेम पार्ट को लेके आएँ, येलो कलर फ्लावर के, और उसको हम रेड वाले में अगर हम ग्राफ्ट करते हैं तो उससे जो फ्लावर डेवलप होंगे वो डिफरेंट कलर के होंगे। ठीक है, मिक्स कलर के हो सकते हैं। सेम चीज़ हम
मैंगो के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लिए हम ग्राफ्टिंग मेथड से 2 तरह की स्पीसीज़ को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज ए ग्राफ्टिंग मेथड।